morning, students. As in our last class, we have read up till this particular paragraph which you are seeing on the screen. It has something to do with the Japanese art. I think, sir, karate or jujitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system. You see, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ईश्वरन का कहना था कि किस तरह से उसने हाथी को बेहोश किया एक ऐसी कला से जिसको या तो करैटे या फिर जिजित्सु नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी जानवर के ऐसे हिस्से में मारा जा सकता है जिससे कि वो बेहोश हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the unimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक जो है किस्सा तो ईश्वर ने ये सुनाया कि किस तरह से उसने एक हाथी को बेहोश किया। फिर अगले दिन ईश्वरन ने कोई भूतहा किस्सा भी उसको सुनाया था अपने मालिक महेंद्र को। ये बात तय थी कि महेंद्र को भले ही ईश्वरन की बातें सच्ची लगती हो या झूठी लगती हो, लेकिन वो उन्हें सुनना बहुत इंजॉय करता था। कारण ये था कि ईश्वरन अपनी कहानी को बहुत ही मज़ेदार ढंग से, अनूठे ढंग से बोला करता था। एक ऐसा ढंग जिसे कोई कॉपी नहीं कर सके, जिसे कोई मतलब चुरा ना सके। अनूठे ढंग के कारण ही महेंद्र ईश्वरन की सच्ची झूठी सारी जो है कहानियों को मन से सुनता था। एक सुबह शायद यहाँ जो स्टोरी में बताया जा रहा है क्लियर नहीं है, लेकिन स्टोरी में जहाँ तक बताया जा रहा है उस हिसाब से ये श्राद्ध का दिन शायद है, क्योंकि एक सुबह महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उनको कहा कि सर, आज रात को मैं कुछ खास बनाऊंगा, क्योंकि आज वो दिन है, हमारी मान्यता है, हमारी रीति रिवाज है, परंपरा है कि आज के दिन में अच्छे अच्छे खाने पकाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो आत्माएं हैं वो नीचे आ करके हमसे खाना मांगती है और हमसे पानी मांगती है और हम उन्हें फीड करते हैं। तो बढ़िया से बढ़िया हम खाना आज बनाते हैं। तो उस रात को ईश्वरन ने बहुत ही कमाल का खाना बनाया और इतना अच्छा खाना महेंद्र ने कभी जो है खाया भी नहीं था। खाना खाने के बाद कुछ ऐसा बात वो सुनाया महेंद्र को कि जो महेंद्र बहुत ज़्यादा चिंता में और बहुत ही डर में चला गया। क्या हुआ देखते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा। On his culinary skills, he seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, Ishwaran continued. ईश्वरन ने एक दिल दहला देने वाली बात अपने मालिक को कही। लाजवाब खाना रात का डिनर खिलाने के बाद ईश्वरन ने कहा कि
सर आप जानते हो, आपको एक बात का खुलासा करूं, हम लोग जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये जो एरिया है, ये पूरा फैक्ट्री एरिया किसी ज़माने में कब्रगाह या कब्रिस्तान बोल लो या फिर शमशान घाट बोल लो, शमशान घाट हुआ करता था। क्योंकि ईश्वरन का कहना था कि उसने कुछ खोपड़ियाँ, इंसानी खोपड़ियाँ देखी थी। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात ईश्वरन ने अपने मालिक को कही। उसने कहा कि सर यहाँ पे भूत प्रेत हैं, बिल्कुल है। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन एक औरत के भूत को मैंने देखा है जो अमावस्या की रात को, आधी रात को निकलती है। बदसूरत सा वो भूत है, बदसूरत सी वो भूतनी है देखने में, बिखरे हुए बाल और बहुत ही डरावना चेहरा, और एकदम कंकाल की तरह दुबली पतली, और हाथ में एक बच्चे का फीटस मतलब होता है स्टूडेंट्स, अजन्मा बच्चा। अजन्मा बच्चा को फीटस कहा जाता है, जो माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, उसे हम फीटस कहते हैं। तो उसने कहा कि फीटस को हाथ में लेकर के वो मुझे दिखाई दी है, वो आत्मा या वो भूत। Mahindra shivered at the description and uninterrupted, rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. तो क्या हुआ देखो स्टूडेंट्स, महिंद्रा बहुत डर गया और उसने ईश्वरन को बहुत ज़बरदस्त डांट लगाई और कहा फालतू की बातें मत करो, अपना दिमाग और अपना पाचन तंत्र डॉक्टर से ठीक एक बार चेक करा लो। तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया और तुम्हारा पाचन तंत्र भी खराब हो गया, बकवास बातें आगे से मत करना। ये बोल करके ईश्वरन बीच में ही वहाँ से निकल गया। उसने सोचा कि एक दो दिन तक ईश्वरन से बात नहीं करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद या अगले ही दिन जब ईश्वरन से वो मिला तो ईश्वरन एकदम खुश और बातूनी ही उनको नजर आया। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. ईश्वरन को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा स्टूडेंट्स, वो तो डरावनी बात बोल करके एकदम मस्त था, हंस रहा था, बोल रहा था, पहले की तरह ही था। लेकिन महेंद्र को अंदर ही अंदर महेंद्र के दिमाग में, दिल में डर बैठ गया। पहले अमावस्या की रात एक्चुअली फुल मून डे का मतलब पूर्णिमा होती है, और नो मून डे का मतलब अमावस्या होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली पूर्णिमा की बात की जा रही है, फुल मून डे जब चांद अपने पूरे फुल रूप में होता है, पूर्ण आकार में होता है, चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है, उस समय प्रकृति का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आम तौर पर महेंद्रा ये प्रकृति के नज़ारे स्पेशली रात के समय, चांदनी रात में, फुल मून डे यानी पूर्णिमा की रात को बहुत इन्जॉय किया करता था। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद वो डर के रहने लग गए।
अब जो है वो प्रकृति के नज़ारों को रात को, फुल मून डे को, या फुल मून नाइट, एक्चुअली फुल मून नाइट को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice. But the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation any more. Lowering himself up to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. एक रात को तो बड़ा गजब ही हो गया। महेंद्र को एक अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले उनको लगा कि बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, लेकिन वो आवाज़ थोड़ी अलग किस्म की थी, थोड़ी अलग किस्म की, यानी कि थोड़ी डरावनी या थोड़ी भयानक किस्म की थी। बार बार महेंद्र के मन में आया कि नहीं, खिड़की से बाहर नहीं देखना है, अगर कुछ गलत भूत प्रेत देख लिया तो क्या होगा। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की अपने मन को कि बाहर नहीं देखना है, लेकिन अंततः उनकी जो जिज्ञासा है उसने उन्हें नहीं रुकने दिया। और जब महेंद्र ने बाहर देखा तो उनको अपनी खिड़की के बाहर अंधेरा सा बादलों से भरा हुआ एक बंडल नजर आया। दूर से देख करके वो कुछ औरत के आकार का ही था और उसके हाथ में भी कुछ था। तो महेंद्र को यकायक वो बात याद आ गई कि किस तरह से एक भूतनी जो है वो एक फीटस यानी अजन्मे बच्चे को अपनी गोद में लेके रखती है। ये उसे वो ध्यान आ गया और फिर उसके बाद वो अचानक से जो है बेहोशी हो गए। होश आने के बाद उन्होंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि शायद लगातार भूतहा बातों को सोचने के कारण ही उनके अवचेतन मन ने उनके साथ कोई खेल खेला है और शायद ये हकीकत ना हो। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day by R.K. Lakshman. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये कहानी खत्म होती है जिसका एंड बड़ा ही मज़ेदार है। अगली सुबह ईश्वरन जब जगे, महेंद्र जब जगे तो ईश्वरन ने उनको ग्रीट किया और उनके लिए लंच का पैकेट भी वो लेके आया और साथ साथ उसने एक बहुत ही गजब की बात कही। एक्चुअली रात को तो महेंद्र जो है बेहोश हो गया था और शायद वो बेहोशी में करहा भी रहा था, चिल्ला भी रहा था और उसको शायद रात को ईश्वरन ने संभाला हो, हालांकि वो नींद में ही था। तो इसलिए सुबह उठ करके क्या हुआ, ईश्वरन ने जाकर के उसको बोला कि भाई लगता है जो है आपको जब मैं बोला करता था कि एक भूतनी है जो अजन्मे बच्चे को अपनी बाहों में लेके रखती है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कल रात को तो आपने खुद ही देख लिया था वो चीज़, क्योंकि आपके रूम से मुझे लगातार कराने की आवाज़ें आ रही थी। बस आगे वो कुछ बोलता इससे पहले ही महेंद्र वहाँ से चुपचाप निकल गया। महेंद्र के स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में एक डर की सिहरन दौड़ पड़ी। उन्होंने ईश्वरन को अपने सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं करने दिया, वहाँ से चुपचाप निकल गए तेज़ी से और डायरेक्ट अपने ऑफिस गए और वहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया।
रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भाई देखो, अब मुझे इस भूतहा मकान में काम नहीं करना है। मतलब भूतहा फैक्ट्री में काम नहीं करना है, जो कि ईश्वरन के हिसाब से कभी एक ब्यूरियल ग्राउंड था, यानी शमशान घाट था। तो ऐसे स्थान पर मुझे काम नहीं करना है जो किसी ज़माने में शमशान घाट रहा हो। मैं अपना जीवन और रिस्क में नहीं डाल सकता। ऐसा ही कुछ कहने का मतलब था ईश्वरन का, रादर महेंद्र का। और महेंद्र ने ये बात कही भी, और इस तरह से जो है उन्होंने शायद एक अच्छी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जान बची सो लाखों पाए, ये कहावत तो है ही। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो महेंद्र को ये सारी बातें अंततः सच लगी, जिसे वो पहले नकार रहे थे कि सच नहीं है। और ईश्वरन की कन्विंसिंग पावर देखो, उन्होंने अंततः महेंद्र को कन्विंस कर ही लिया अपनी बातों को मानने के लिए। उन्होंने उनको बाध्य कर दिया, और इतना सुंदर ढंग से ईश्वरन ने महेंद्र को कन्विंस किया कि महेंद्र अंततः जो है नौकरी छोड़ने के लिए ही तैयार हो गया। समझ गए? तो ये कहानी खत्म होती है। आज मैं फ़िलहाल यहीं तक आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई मे स्टार्ट ए न्यू चैप्टर फ्रॉम मे बी बी हाइव। ठीक है, तो हमने बात कर ही ली थी कि एक बी हाइव से करेंगे और एक चैप्टर बी हाइव से करेंगे और एक चैप्टर मूवमेंट से करेंगे। इस तरह से हमारा चलते रहेगा। तो मूवमेंट्स का इस तरह से ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और अगला वीडियो जो है इसके क्वेश्चन आंसर को डील करेगा, एक्सरसाइजेस को डील करेगा, और साथ साथ एक न्यू चैप्टर को भी स्टार्ट करेगा बी हाइव का। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।